students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 7 of your class 5 science, that is essential for life, air and water. You know, there are two things that are very much essential in our life, that is air. Without air we cannot live, and that is and another thing is water. You know, without water we also cannot live. The Earth's atmosphere is surrounded by the blanket of air that is called the atmosphere, और air कई millions of kilometers above तक है Earth से. So we need air to live. All the plants need in air. We need air to breathe in. We inhale CO2. We need air to breathe in. We need air to breathe in, like we need oxygen to inhale. We exhale carbon dioxide, and we also need water for in our daily life. Without water we cannot live. Without water all living things cannot grow, like plants also cannot grow. Animals, what they will drink if there is no water on the earth? How they will bath if there is no water on the earth? So every living being needs water. So let's begin with this chapter. In this chapter we will learn about air. What do you mean by air? कि air क्या होती है? Second, the properties of air. कि air की क्या क्या properties होती है? में क्या क्या चीजें होती है? Third is the layers of air, that is stratosphere, troposphere and many others. And the fourth, importance of the atmosphere. क्या importance है atmosphere की? And the fifth one is air pollution. Why air pollution is causing day by day, increasing day by day. And the sixth is water. What do you mean by water? And another one is impurities in water. कैसे impurities हो रही है water pollution की वजह से, कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. And the next one is purification of water. How can we purify water with filtration, sedimentation, decantation? And the next one is purification of drinking water. हम drinking water को कैसे purify कर सकते हैं भाई? Purification और chlorine methods and many others. Now let's talk about air. Air क्या है? The earth is surrounded by an envelope of air. जो हमारा earth है किससे surrounded है? Envelope of air. So that is atmosphere. It extends up to few hundred kilometers above the earth. वो extended है हमारे earth से few hundred kilometers तक earth के. Air is a mixture of gases. Air क्या है? Mixture है gases का. In air there is nitrogen, carbon dioxide, helium, oxygen. So it contains 78% of nitrogen. हमारी air में 78% क्या है? Nitrogen है 78%. That is nitrogen. And 21% oxygen. कितना परसेंट है? सिर्फ 21% oxygen है. And 0.03% carbon dioxide. और 0.30% क्या है? Carbon dioxide है. 0.97% is water vapor and other gases. Of all the gases present in the air, oxygen is the most important. सारी gases में से जो हमारी air में present होती है, इसमें सबसे ज़्यादा important है हमारे लिए oxygen. If there will be no oxygen, what will be inhaled? All living things breathe in air to get oxygen. हर living things का breathe करती है, they all breathe in the air to get oxygen. When we breathe in air, जब भी हम breathe करते हैं air में, the oxygen from the air is absorbed by the blood and taken to the different parts of the body, and carbon dioxide is given out. जो oxygen absorbed होता है हमारी bloods के through, वो कहाँ तक जाता है? हमारी बॉडी के different बॉडी पार्ट्स तक जाता है. और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आती है? That is exhaled. It is given out. Oxygen in the air is also needed to burn fire. जो ऑक्सीजन होती है हमारी एयर में वो किस लिए भी नीडेड होती है? फायर को बर्न करने के लिए. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम कुछ चीज बर्न भी नहीं कर सकते. आप कैसे ट्राई कर सकते हो उसको? यू कैन टेक वन कैंडल एंड लाइट इट अप एंड यू विल टेक वन ग्लास ऑफ वाटर. ऑक्सीजन इन द एयर इज ऑल्सो नीडेड टू बर्न फायर. जो हमारी ऑक्सीजन होती है हमारे एयर में वो किस लिए भी नीडेड होती है? फायर को बर्न करने के लिए. अगर फायर ऑक्सीजन नहीं होगी, वी कैन नॉट बर्न द फायर, वी कैन नॉट लाइट अप द कैंडल. यू कैन टेक वन कैंडल, you can take one glass. If you have to burn that candle, then put that glass on it, on the burning candle. After some time it will blow out. Why? Because वहाँ ऑक्सीजन का presence खत्म हो जाएगा, तो the candle will burn out. Now properties of air. What are the properties of air? First is air occupies space and has weight. Air क्या occupy करती है? Air occupies the space. और air में क्या होता है? इसमें weight भी होता है. Yes. If you will take one balloon,
तो व्हेन यू विल ब्लो दैट द बलून्स विल बिकम लार्ज। क्यों हुआ लार्ज? क्योंकि एयर ने स्पेस को ऑक्यूपाई करा, आपने एयर डाली उसमें और वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को। एंड हाउ कैन यू चेक द एयर हैज वेट? You can take two balloons, and you have to take one scale, and you have to put one balloon, blow the balloon on another side, and on another side blow out balloon. So वहाँ पे जो आपका जिसमें एयर नहीं है, जिस बलून है उस साइड में it will fall down because उसमें वो fall down नहीं करेगा because जिधर बलून में एयर है वो नाउ फर्स्ट पॉइंट एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट। यस, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। आप कैसे चेक कर सकते हो? व्हेन यू ब्लो वन बलून, उसमें जब आप एयर ब्लो करोगे तो इट बिकम्स लार्ज। क्यों हुआ लार्ज? क्योंकि आपने एयर ब्लो करी और उसने स्पेस लिया, तो उसने स्पेस को ऑक्यूपाई करा और उसमें वेट होता है। कैसे चेक कर सकते हो? You have to take two balloons and on a ruler you have to put the two balloons on each side of the ruler. एक साइड आपको लेना है ब्लोड बलून जिसमें आपने एयर ब्लो कर रखी है, और एक साइड, दोनों साइड लेने हैं ब्लोड बलून्स। एक साइड आपको प्रिक कर देना है बलून का। जिस साइड आप प्रिक करोगे और जिस साइड ब्लोड बलून्स होगा, स्केल उसकी तरफ टिल्ट कर लेगा क्योंकि ब्लोड बलून में एयर है। एयर क्या ऑक्यूपाई कर रही है? एयर ऑल्सो हैज वेट। एयर में वेट होता है, इसलिए ब्लोड बलून की तरफ आपका रूलर टिल्ट हो जाएगा। लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी टू नो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। हियर इज द एक्टिविटी। टेक अ थिन स्ट्रेट स्टिक। आपको एक थिन स्ट्रेट स्टिक लेनी है। टू बलून्स ऑफ द सेम साइज लेना है एज आई टोल्ड यू इन दैट एक्टिविटी। अ स्ट्रिंग एंड अ पेन। एक स्ट्रिंग लेनी है, पेन लेनी है। टाई द स्ट्रिंग टू द मिडल ऑफ द स्टिक। आपको स्ट्रिंग को ट्राई करना है मिडल के स्टिक के। Fill both the balloons with air. आपको दोनों balloons fill करने हैं एयर से, so that both of them are equal in size. तो दोनों equal है size में। Tie the mouth of the balloons with strings of the same size. Strings से आपको क्या करना है? mouth को tie करना है balloons के। Hang the balloons on each side of the stick. आपको balloons को hang करना है each side पे stick के। Hold up the string at the center. आपको string को hold करके रखना है center में। The sticks remain horizontal and the balloons are balanced. तो stick क्या है? horizontal है और balloons क्या है? balanced है। Now prick one balloon with the pin and allow air to escape. एक balloon को prick कर दो pin की help से और air निकल जाएगी उसमें से। This end will go up and other end will come down. जो ये end है वो ऊपर चला, मतलब एक end जो है जिसका pricked है वो नीचे चला जाएगा, और जो जिसमें जो pricked हुआ है, मतलब जो विदाउट प्रिक्ड है वो नीचे चला जाएगा, और जो फ्रिक हुआ है वो ऊपर चला जाएगा। द बलून्स फिल्ड विद एयर इज हैवियर देन द बलून्स व्हिच हैज नो एयर। जो फिल्ड है एयर से वो हैवियर है, और उससे जो फिल्ड नहीं है एयर से, जो प्रिक्ड हुआ है वो तो ऊपर चला जाएगा। दिस शोज दैट द एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड वेट। तो ये क्या शो करता है? एयर क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और वेट भी ऑक्यूपाई कर रहा है। नाउ एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर कैसे एक्सर्ट करता है प्रेशर को? We have learned that air occupies space and has weight. हमने पढ़ा है कि एयर क्या ऑक्यूपाई करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें वेट होता है। Anything that has weight exerts pressure. और जिसमें भी वेट होता है हर चीज़ वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। How? So air exerts pressure. The pressure exerted by air is called atmospheric pressure. जो प्रेशर एयर एक्सर्ट करती है उसको क्या कहते हैं? हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। Here is one activity. Take a glass tumbler and fill it with water up to its brim. उसके एक ग्लास टम्बलर लेना और आपको फिल करना है वाटर उसके ब्रिम तक। There should be no air bubbles in the tumbler. एयर बबल्स नहीं होने चाहिए उस टम्बलर में। Place a piece of cardboard on the mouth of the glass. एक कार्डबोर्ड रखो उस माउथ पे ग्लास के। Hold the cardboard tightly with one hand. टाइटली पकड़ो उस कार्डबोर्ड को एक हैंड से and turn the glass upside डाउन वेरी क्विकली। एकदम टर्न कर दो ग्लास को अपसाइड डाउन क्विकली। रिमूव योर हैंड जेंटली फ्रॉम द कार्डबोर्ड। आपको जेंटली रिमूव करना है अपने हैंड को कार्डबोर्ड पे से। यू सी दैट द कार्डबोर्ड स्टेज इन द एयर प्लेस। जो आप देखोगे जो कार्डबोर्ड है वो अपने प्लेस पे ही रहेगा। द वाटर ऑल्सो डज नॉट फॉल एट ऑल। जो वाटर है वो भी नहीं गिरेगा। What keeps the cardboard piece stuck to the glass? क्या कीप रखता है कार्डबोर्ड पीस को उसके stuck ग्लास पे? Is the pressure of the air. क्या होता है? प्रेशर होता है एयर का। The air outside the cardboard piece exerts pressure. जो एयर होता है exert करता है कार्डबोर्ड पीस पे, वो प्रेशर exert करता है on the cardboard and prevent it from falling. और क्या करता है? प्रिवेंट करता है उसको फॉल करने से।
दिस शोज दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. इससे हमें पता चलता है कि एयर क्या एक्सर्ट करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है. नाउ एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. एयर बर्निंग के लिए भी नीडेड है. एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज नीडेड फॉर बर्निंग. एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, वो बर्निंग के लिए बहुत ज्यादा नीडेड होता है. फिक्स 3 कैंडल्स ऑन अ टेबल एंड लाइट देम. आपको 3 कैंडल्स फिक्स करनी है अपनी टेबल पे और उनको लाइट करना है. कवर द सेकेंड एंड द थर्ड कैंडल विद ग्लास जार्स. आपको ग्लास जार से वो कैंडल्स को कवर कर देना है. द ग्लास जार्स ऑन द थर्ड कैंडल शुड बी बिगर देन द वन ओवर द सेकेंड. जो ग्लास जार है थर्ड पे वो बिगर होना चाहिए सेकेंड वाले से. वॉट डू यू ऑब्जर्व. आपने क्या ऑब्जर्व किया, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. वो ब्लो आउट हो जाएंगी तो एयर क्या है, नीडेड है बर्निंग के लिए. नाउ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. Now let's talk about the layers of atmosphere, that is troposphere, the stratosphere, and the mesosphere, thermosphere, and exosphere. Now let's talk about troposphere. The atmosphere is divided into 5 layers. हमारा atmosphere 5 layers में divided है. First one is troposphere. Troposphere कहाँ होती है? This is the first layer above the earth's surface. वो हमारे अर्थ के surface की first layer होती है. चेंज इन द वेदर अकर्स इन दिस लेयर. जो हमारा वेदर चेंज होता है किस लेयर में होता है, इसी लेयर में होता है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर. सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर. दिस इज द सेकेंड लेयर, वो हमारी सेकेंड लेयर होती है. मैनी जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस एयर. जो जेट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, कहाँ फ्लाई करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं. ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन दिस लेयर. ओजोन गैस प्रेजेंट होती है इस लेयर में. ओजोन एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन. ओजोन क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल यूवी रेज को सन से जो आती है. दीज रेज कॉजेस स्किन कैंसर. जो ये रेज होती है क्या कॉज करती है, स्किन कैंसर कॉज करती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेसोस्फेयर. दिस इज द थर्ड लेयर. This is the third layer. Meteoroids or the small rocks moving about in space burns on this layer and therefore do not reach the surface of the earth. जो meteoroids होते हैं स्मॉल रॉक से यहाँ पे इस एयर से बर्न हो जाते हैं और हमारे अर्थ तक नहीं पहुँचते. Now thermosphere. This is the fourth layer. Thermosphere क्या है, हमारी fourth layer है. Space shuttles move about in this layer. जो space shuttles होती है कहाँ move करती है, thermosphere में move करती है. And the last one is exosphere. This is the fifth and the last layer. This is the fifth layer of the atmosphere. वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं होता. Now importance of the atmosphere. Let's talk about importance of atmosphere. क्यों important है हमारा atmosphere? The atmosphere plays a vital role in sustaining life on the earth. हमारा atmosphere vital role play करता है जो हमारी life चलती रहती है हमारी earth पे उसमें. First, the atmosphere provides oxygen for breathing to all the living things. Oxygen सारे living things को air provide करता है, like humans को, animals को, plants को, जिन को air चाहिए तो सबको provide करता है. Second, it provides CO2 to plants for photosynthesis. वो plants को CO2 भी provide करता है. किस चीज़ के लिए? Photosynthesis के लिए, जिससे वो food बनाते हैं. Third, atmosphere also traps the heat of the sun and helps in maintaining the right टेम्परेचर ऑन द अर्थ. एटमॉस्फेयर क्या करता है, ट्रैप करता है सन की हीट को और राइट टेम्परेचर तक वो हमारी अर्थ तक है, इसमें हेल्प करता है. नेक्स्ट, द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन. जो ओजोन लेयर होती है हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है जो सन से आती है, जो स्किन कैंसर कॉज करती है. These rays cause skin cancer and problems in the eyes. क्या cause करती है, स्किन कैंसर. सो हमारी आई में जो प्रॉब्लम्स होती है वो cause करती हैं. Now let's talk about air pollution. You know, day by day the air pollution increases because of harmful gases that are released from factories and anywhere, from vehicles and from burning of crackers, burning of plastic. इससे क्या होता है, air pollution होता है. The presence of unwanted material in the air which are harmful for plants and animals is called air pollution. जो भी presence होती है unwanted materials हमारी air में जो हमारे लिए और harmful है plants के लिए भी और animals के लिए, उनको क्या कहते हैं, that is called air pollution. These undesirable substances are called pollutants. जो pollute करते हैं हमारे air को उनको क्या कहते हैं, जो undesirable substances होते हैं, we call them as pollutants. Smoke and dust are the main pollutants of air. Smoke और dust क्या हमारी air का main pollutants है.
Air pollution cause many diseases like asthma, bronchitis and other respiratory disorders. एयर क्या कॉज करती है? वो डिजीज कॉज करती है. अस्थमा हो गया, ब्रोंचिटिस हो गया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो गए. इट किल्स प्लांट्स एंड ट्रीज. वो क्या किल करता है? प्लांट्स को और ट्रीज को किल करता है बाय डैमेजिंग देयर लीव्स, जिससे उसकी लीव्स डैमेज हो जाती है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. वो किस लिए भी रिस्पॉन्सिबल है? जो डिप्लीशन होता है हमारी ओजोन लेयर का, उसके लिए भी. नाउ कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? We should plant more trees as they remove CO2 from air and release oxygen into the atmosphere. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट्स करना चाहिए जिससे वो ऑक्सीजन रिलीज करें हमारे एयर में और CO2 इनहेल कर लें, सारा एयर से रिमूव कर दे. सेकेंड, ऑटोमोबाइल्स शुड बी चेक रेगुलरली सो दैट दे डू नॉट रिलीज हार्मफुल गैसेज. जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होती है, कार्स, व्हीकल्स जो भी होते हैं, हमें सबको रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए उनको हमें, जिससे वो हार्मफुल गैसेस रिलीज ना करें. थर्ड, वी शुड यूज रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक द सन एंड द विंड. हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करना चाहिए, सोलर एनर्जीज को यूज करना चाहिए जो सन से आती है, विंड को, विच आर नॉन पॉल्यूटिंग, जो नॉन पॉल्यूटिंग होती है हमारे एनवायरमेंट के लिए. नेक्स्ट, वी शुड यूज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स लाइक CNG फॉर कार्स एंड बसेस. हमें नॉन पॉल्यूटेड फ्यूल्स को यूज़ करना चाहिए. जो CNG होती है वो किस में यूज़ होती है? हमारी कार्स में, बसेस में यूज़ होती है. नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट वाटर. व्हाई वाटर इज हेल्पफुल टू अस? हाउ वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? वाटर इज इम्पोर्टेंट एज एयर फॉर आवर सर्वाइवल. वाटर इतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि एयर हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है. वी नीड वाटर टू ड्रिंक. वी आर थर्स्टी. जब हम थर्स्टी होते हैं हमें वाटर जब भी चाहिए होता है ड्रिंकिंग के लिए. We cannot stay thirsty for long. हम thirsty, प्यास से ज़्यादा टाइम तक के लिए हम नहीं रह सकते. Plants cannot live long without air. जो plants होता है वो भी air के बिना नहीं रह सकते ज़्यादा दिन तक. Water is also needed for cooking, bathing, working and construction work. Water किस लिए needed है? Plants के लिए भी needed है. They cannot live without water. वाटर किस लिए नीडेड है? कुकिंग के लिए भी, बाथिंग के लिए भी और कंस्ट्रक्शन के लिए भी. जो हाउसेस बनता है उसमें भी वाटर नीडेड होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ड्रिंक प्योर वाटर. तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम प्योर वाटर को ड्रिंक करें. द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर इज रेन वाटर. जो प्योरेस्ट फॉर्म है हमारे नेचुरल वाटर की क्या है? दैट इज रेन वाटर. रेन वाटर कैन डिजॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम द एयर, कलेक्ट डर्ट, सर्टेन लिविंग एंड डेड थिंग्स एंड अदर इम्प्योरिटीज. रेन वाटर क्या करता है? डिजोल्व कर देता है सब्सटेंसेस को एयर के, कलेक्ट डर्ट, वो डर्ट को कलेक्ट कर देता है, सर्टेन लिविंग एंड डेड थिंग्स के, और उससे जो प्योरिटीज होती है उनको कलेक्ट करता है. दिस वाटर मस्ट बी प्योरीफाइड एंड मेड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. तो इसे हमें क्या करना चाहिए? पहले प्योरीफाई करना चाहिए और सुटेबल करना चाहिए ड्रिंकिंग के लिए. नाउ इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर. क्या क्या इम्प्योरिटीज होती है वाटर में? वाटर में कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है, कुछ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं. The solubles that makes the water unfit to use are called impurities. The substance that make water unfit to use are called impurities. जो substance unfit बनाते हैं हमारे water को use के लिए, that is impurities. Impurities are of two types, soluble and insoluble. First, let's talk about soluble, जो easily dissolve हो जाती है. All those impurities that can dissolve in water are called soluble impurity. जो impurities हमारी water में dissolve हो जाती है उनको क्या कहते हैं हम? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं पोटेशियम के और मैग्नीशियम के, दैट आर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. सेकंड इज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जो डिजोल्व नहीं होती इजिली वाटर में. ऑल दोज इम्प्योरिटीज दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर. जो भी इम्प्योरिटीज है जो डिजोल्व नहीं होती वाटर में, दे आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड मड. सैंड और मड क्या है? हमारी सारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. वाटर को हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं? रिमूविंग ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करके हम प्योरीफाई कर सकते हैं वाटर को. फर्स्ट, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन के थ्रू, सपोज यू हैव टेकन अ जार, उसमें आपको वाटर लेना है, यू हैव टू पुट सम सैंड, उसको फिर आपको स्टिर करना है, तो इनसॉल्युबल आपका वाटर जो है इम्प्योर हो गया. तो देन यू कैन सी व्हेन यू विल पुट दैट वाटर फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर और फॉर अ डे, तो वो जो सैंड है उसमें नीचे कलेक्ट हो जाएगा. जो नीचे कलेक्ट हो गया तो ऊपर का वाटर आपका सारा प्योर हो गया.
तो दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन है. यू नो व्हाट इज डिकेंटेशन? जो प्योर वाटर हुआ आपको उसे आपको क्लीन कंटेनर में व्हेन यू स्टिर दैट कंटेनर, when you convert that water to another container, that is called decantation. जो sand है वो नीचे रह गया पुराने वाले कंटेनर में. A simple process of removing suspended impurities from water is sedimentation. क्या होता है सिंपल प्रोसेस जो हम रिमूव करते हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को फ्रॉम वाटर, दैट इज decantation. In this process, the pure water such as mixture of mud and water is taken in a beaker. इस प्रोसेस में क्या करना है कि इम्प्योर वाटर लेना है या मिक्सचर ऑफ वाटर लेना है हमें एक बीकर में. द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम अनडिस्टर्ब. तो उस मिक्सचर को क्या करना है, हमें अलाउड स्टैंड करना है कुछ टाइम के लिए. द इंसॉल्युबल एंड मड सेटल्स डाउन एट द वाटर. जो इंसॉल्युबल मड है वो कहाँ सेटल डाउन हो जाती है, बॉटम में हो जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं. वाटर फॉर्म्स द क्लीन अपर एयर. जो वाटर है क्या फॉर्म करती है, क्लीन अपर लेयर को फॉर्म करती है. द क्लीन वाटर इज ट्रांसफर टू अनदर बीकर. जो क्लीन वाटर क्या होता है, ट्रांसफर होता है दूसरे बीकर में विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. किसकी हेल्प से, ग्लास रॉड की हेल्प से. बाय टेकिंग केयर दैट द सेडिमेंट इज नॉट डिस्टर्ब. इतनी टेक केयर करने के जिससे सेडिमेंट्स डिस्टर्ब ना हो. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन. Now filtration. Let's talk about filtration. Filtration क्या होती है? Take a filter paper circular in shape. एक filter paper ले रहा है circular shape में. Fold it twice to make a cone. उसे twice fold करो cone बनाने के लिए. Wet it slightly and place it into a funnel. उसे थोड़ा सा गीला करो एक funnel में रख दो. Make sure that the edges of the paper stick in the funnel. इतना make sure करना जो edges है वो funnel में रुक जाए. Make a mixture of sand and water. एक mixture बनाओ sand का और water का. Place a beaker below the funnel and slowly pour the sand solution over the filter paper. तो एक आपको क्या करना है, आपको बीकर लगाना है उसके फनल के नीचे और एक जो आपने वाटर का मिक्सचर तैयार किया था सैंड का वो आपको उसमें उसमें आपको डालना है. क्लियर वाटर विल बी कलेक्टेड इन द बीकर बिलो. जो क्लियर वाटर है वो तो नीचे कलेक्ट होता है. दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. इसको क्या कहते हैं हम, फिल्ट्रेट कहते हैं. और जो सैंड होगी वो आपके फिल्टर पेपर में रह जाएगी. व्हाट डू यू सी ऑन द फिल्टर पेपर? सैंड लेफ्ट बिहाइंड ऑन द पेपर. आपको सैंड दिखेगी लेफ्ट बिहाइंड जो होती है पेपर पे. इट इज द रेसिड्यू. उसको क्या कहते हैं हम, रेसिड्यू कहते हैं जो सैंड बचती है हमारे फिल्टर पेपर पे. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. जो प्रोसेस होता है रिमूव करने का वाटर को किसकी हेल्प से, फिल्टर पेपर की हेल्प से, उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन. समटाइम्स इफ अ फिल्टर पेपर इज नॉट अवेलेबल पीपल यूज क्लोथ फिल्टर एंड सीव्स टू कैरी आउट फिल्ट्रेशन. जब तक फिल्टर पेपर अवेलेबल नहीं होता तो लोग क्या यूज करते हैं, क्लोथ्स को यूज, पीस ऑफ क्लोथ को यूज कर लेते हैं या फिल्टर को एंड सीव्स टू कैरी आउट फिल्ट्रेशन. नाउ रिमूविंग ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उन्हें हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? फर्स्ट बाय इवेपोरेशन. How? In this method, we heat the solutions containing soluble impurities like salt. इस मेथड में जो सॉल्यूशन होता है जिसमें soluble impurities होती है उसे हम हीट करेंगे. After some time, water gets evaporated. कुछ टाइम के बाद वाटर इवेपोरेट हो जाता है. Changes into steam. किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है. And impurities left behind. और impurities बच जाती हैं. Second is distillation. Second होता है हमारा distillation. In distillation, impure water is heated till it starts boiling. Distillation में impure water heat up होता है और जब तक वो start करे boiling. On boiling that water evaporates and impurities remain behind. Boiling के time पे क्या होता है, water evaporate होता है और impurities बचती हैं. The water vapor enters the condenser. जो water vapor है कहाँ enter करता है, condenser में enter करता है, which is kept cool by the cold water circulating around it. तो कहाँ बचता है वो, कोल्ड बचता है जहाँ वाटर सर्कुलेट कर रहता है. ऑन एंटरिंग द कूल कंडेंसर द हॉट स्टीम और वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर अगेन. जब एंटर कर देता है कूल कंडेंसर में तो जो हॉट स्टीम होती है किसमें चेंज हो जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है वापस से. इट कलेक्ट्स इनटू द फ्लास्क बिलो. वो कहाँ कलेक्ट होगी, फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगी जो नीचे है. डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. जो डिस्टिल्ड वाटर है वो क्या है, हमारा प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का. It does not contain any harmful impurities or germs.
उसमें क्या नहीं होता, कोई impurities नहीं होती, germs नहीं होते. The impurities that were dissolved in the water are left behind in the heating flask. जो impurities है वो कहाँ रुक गई, हमारे heating flask में रुक गई. The water is mainly used in car batteries. कार बैटरीज कहाँ पे यूज होता है ये वाटर, हमारी कार्स की बैटरीज में यूज होता है. साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड इन मेडिसिन कहाँ यूज होता है, कार्स की बैटरीज में, साइंस एक्सपेरिमेंट्स में एंड मेडिसिन में. नाउ प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. हाउ कैन वी प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर? Impure water is harmful to us and leads to many diseases. Impure water क्या होता है, हमारे लिए harmful होता है, बहुत सारी diseases छोड़ जाता है. So we drink pure water. हमें pure water drink करना चाहिए. We can purify water by using following methods. हम purify कर सकते हैं water को कुछ methods use करके. First is boiling. Boiling क्या होता है? Water is heated for 10 minutes. Water को क्या करते हैं हम, heat up करते हैं 10 minutes के लिए. Boiling kills the germs present in water and makes the water pure. जो boiling है क्या करती है, germs को kill कर देती है, water को pure बना देता है. It is the simplest way to purify water. ये क्या simplest way है water को purify करने का? Second is chlorination. What do you mean by chlorination? The addition of chlorination tablets in water to kill germs and make water pure is called chlorination. जो हम क्लोरीन टैबलेट्स को ऐड करते हैं हमारे वाटर में, वाटर को प्योर बना लेता है, दैट इज क्लोरिनेशन. वाटर प्योरीफायर्स सबके होम्स में होते हैं वाटर प्योरीफायर्स. इन सम हाउसेस वी गेट प्योर वाटर प्योरीफाइड वाटर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर. इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर से भी हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं. गो विद नॉलेज पॉइंट. द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर डिसॉल्विंग सो मेनी टाइप्स of substances make it very useful to living organism. जो प्रॉपर्टी होती है वाटर को डिजोल्व कर देता है, वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने में वो यूजफुल बनाता है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इन देयर लाइफ प्रोसेस. वाटर डिजोल्व मिनरल्स, गैसेस एंड अदर बॉडी केमिकल्स एंड कैरीज देम फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. वाटर क्या करता है, डिजोल्व कर लेता है बहुत सारी बॉडी केमिकल्स को, गैसेस को, और हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैरी करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. वो हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी निकालने में हेल्प करता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम लर्निंग पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स रीडू देम. फर्स्ट, द एटमॉस्फेयर extends up to a few hundred kilometers above the earth. जो एटमॉस्फेयर है कहाँ तक एक्सटेंड करता है, अपने अर्थ के few hundred kilometers तक जाता है. सेकेंड, द प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारी एयर उसको क्या कहते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज नीडेड फॉर बर्निंग. एयर ऑक्सीजन कंटेन करता है, किस में नीडेड होती है, बर्निंग में नीडेड होता है. फोर्थ, द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड मटेरियल इन द एयर विच आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. जो प्रेजेंस होता है हमारे अनवांटेड मटेरियल का हमारी एयर में, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है, उसको क्या कहते हैं हम, एयर पॉल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट, एयर पॉल्यूशन कॉजेज मेनी डिजीज लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. क्या कॉज करता है एयर पॉल्यूशन, बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को कॉज करता है, जैसे जो किसकी वजह से होता है, अस्थमा से. अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है. नेक्स्ट, रेन वाटर कैन डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम द एयर, कलेक्ट्स डर्ट, सर्टेन लिविंग एंड डेड लिविंग थिंग्स एंड अदर इम्प्योरिटीज. रेन वाटर क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर सब्सटेंसेस, एयर को कलेक्ट करता है, डर्ट को कलेक्ट करता है एयर फ्रॉम द एयर, सर्टेन लिविंग एंड डेड लिविंग थिंग्स को एंड अदर इम्प्योरिटीज को. नेक्स्ट, द सब्सटेंस दैट मेक द वाटर अनफिट टू यूज आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज. जो सब्सटेंस अनफिट बनाता है वाटर को ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अनफिट फॉर यूज, दैट आर इम्प्योरिटीज इन दैट वाटर. नेक्स्ट, इम्प्योर वाटर इज हार्मफुल टू अस एंड लीड्स टू मेनी डिजीजेस. इम्प्योर वाटर क्या हमारे लिए हार्मफुल है और बहुत सारी डिजीजेस छोड़ के जाता है. सो वी मस्ट ड्रिंक प्योर वाटर, इसलिए हमें प्योर वाटर ड्रिंक करना चाहिए. एंड द लास्ट वन, addition of chlorine tablets in water to kill germs and to make water pure is called chlorination. जो हम क्लोरीन टैबलेट्स को ऐड कर देते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड chlorination. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a nice day.